Hello students, this is Kiran Saxena, your subject teacher of English. This is a PowerPoint presentation about the lesson 3 questions written by Leo Tolstoy, source Honeycomb. Let us discuss about Tolstoy, the writer of the story. Leo Tolstoy, born in 1828 and died in 1910. Leo Tolstoy, who is known as Count Lev Nikolavich Tolstoy, was a Russian novelist regarded as one of the greatest writer of the literature. He is known as greater realistic writer of the world literature. His famous work are War and Peace, Anna Karenina, A Confession, Resurrection. लियो टॉल्स्टॉय जो 1828 में पैदा हुए और 1910 में इनकी मृत्यु हो गई, काउंट लीव निकोलेविच टॉल्स्टॉय के नाम से जाने वाले लियो टॉल्स्टॉय रशियन नॉवेलिस्ट थे जिन्हें लिटरेचर में ग्रेटेस्ट राइटर से रिगार्ड किया गया। वो लिटरेचर की दुनिया में ग्रेट रियलिस्टिक राइटर थे जिनके बहुत फेमस वर्क थे वॉर एंड पीस, एना कारेनिना, अ कन्फेशन और रिसेक्शन। चलिए अब देखते हैं कि स्टोरी की थीम क्या है। 3 Question is a short story written by Leo Tolstoy. This is a story of a king who wanted to become a successful ruler. He thought that he could become better ruler if he knew the right time to begin a new venture. Who were the right people to advise him and what was the most important thing to do? He declared reward for the people who gave him satisfying answers. Many people came and all the answers given by them were different. The king was not at all satisfied. He went to a wise hermit seeking answers. The hermit was digging ground when the king reached there. He repeated his questions several times, but the hermit did not answer. The king helped the hermit in digging them. The king nudged him, digging them. Then they saw a stranger who was badly wounded running towards them. The king nudged him and bandaged his wounds. Later the men told him he was the king's enemy and wanted to kill him. As the king saved his life, he wanted to become his servant. The king repeated the question to the hermit before leaving. The hermit said that the king already found his answer through his deeds. He said that there is only one time that is important now. The most important person is the one whom is currently with, and the most important thing to do is doing good to that person. तो 3 questions लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई स्टोरी में एक राजा है जो ये सोचता है कि वो एक सक्सेसफुल राजा तभी बन सकता है जब उसे 3 बातों का पता हो। पहला ये कि राइट टाइम पे वो कौन सा राइट टाइम है जिस पे वो अपना कोई नया कार्य शुरू कर सकता है। दूसरा, वो कौन सा राइट पीपल है जिससे वो एडवाइस ले सकता है। और तीसरा, वो राइट समय कौन सा है जिस पे वो कार्य कर सकता है। तो राजा इसके लिए रिवॉर्ड भी तय कर देता है लोगों, और बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उसे डिफरेंट आंसर्स देते हैं, बट राजा उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर राजा हरमीत के पास जाता है। हरमीत एक ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी से निगलेक्ट कर दिया जाता है। वो जंगल में अकेला रहता है, अलोन रहता है। वो ज़मीन को खोद रहा होता है। राजा वहाँ पर जाता है और अपनी क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करता है, लेकिन हरमीत आंसर नहीं देता है। लेकिन तभी एक स्ट्रेंजर उनकी तरफ घायल अवस्था में उनकी तरफ भागता हुआ आता है। राजा उसकी देखभाल करता है, उसके वाउंड्स यानी घावों पर बैंडेज लगाता है। इसके बाद जब उस घायल व्यक्ति को होश आता है, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, तो राजा से वो बताता है कि वो उसे मारने आया था, लेकिन अब वो राजा का सर्वेंट बनना चाहता है।
अब किंग फिर से हरमीत से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो हरमीत कहता है कि तुमने जो कार्य किया उससे तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। कि कहता है कि पहला क्वेश्चन था तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो है अब, इसी वक्त। दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, वह है जो करंटली हमारे साथ है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वह जो व्यक्ति के लिए हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। अबाउट द लेसन, अ किंग वंस थॉट दैट ही वुड नेवर फेल if he knew three things. One, what the right time was to begin something. Two, which people he should take advice from. Three, how to decide what the most important thing to do. He sent messenger throughout the kingdom. He promised to give a reward of a large sum to the person who answered his questions. राजा सोचता है कि यदि उसे 3 चीज़ें पता हो तो वो बहुत ही अच्छा राजा बन सकता है। पहला कि वह राइट समय क्या है जिस पर वो कार्य शुरू करे। दूसरा, वो राइट व्यक्ति कौन सा जिससे एडवाइस ले सके। और तीसरा कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी है। तो वो अपने मैसेंजर को चारों ओर भेज देता है पूरे राज्य में और प्रॉमिस करता है कि वो सबको अच्छा रिवॉर्ड देगा जो उसके आंसर्स का, क्वेश्चन का आंसर्स देगा। Many wise men tried their luck. They gave a number of answers. One said that the king should go by a timetable. Another said the king should do whatever seemed his necessary at the moment. The third suggested that the king should consult wise men or magician. Answering the second question, they gave top importance to his counselor or to priest or the doctors or the soldiers. बहुत से बुद्धिजीवी वहाँ पर अपना लक ट्राई करते हैं, बहुत सारे आंसर्स आते हैं। एक कहता है कि राजा को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि राजा को जो उस मोमेंट में ज़रूरी होता है वो देखना चाहिए। तीसरा सजेस्ट करता है कि राजा को अपने किसी वाइज मैन से कंसल्ट लेना चाहिए या फिर किसी मैजिशियन से लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आता है कि राजा को इम्पोर्टेंस अपने मंत्रियों को या फिर पुजारी को या डॉक्टर को या फिर सोल्जर को यानी कि अपने सिपाहियों को देना चाहिए। In reply to the third question, the wise men gave importance to the science or fighting or religious worship. The king was not satisfied. He went to a hermit in the jungle alone. There he saw the old man, weak hermit, digging the ground. The king asked his question but got no answer. Then he took the spade from the hermit and began to work in his place. Several hours passed. It was evening, so the king stopped digging the beds. The king was ready to take leave from the hermit. Just then the hermit told that someone was running towards them. अब तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या आता है कि द वाइज मैन गेव इम्पोर्टेंस टू द साइंस, मतलब जो बुद्धिजीवी आते हैं वो इम्पोर्टेंस किसे देने के लिए कहते हैं कि या तो विज्ञान को या फिर युद्ध को या फिर धार्मिक वर्शिप को दिया जाए। अब किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं होता इन आंसर से, तो फिर वो एक किसके पास जाता है, एक हरमीत के पास। हरमीत मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हरमीत जो सोसाइटी से निगलेक्ट हो जाते हैं, जो सोसाइटी से अलग होकर के अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं जंगल में। देयर ही सॉ, वहाँ पर वो देखता है कि वो ओल्ड मैन जो बहुत कमज़ोर है वो ज़मीन खोद रहा है। राजा उसके पास कई बार अपने क्वेश्चंस को बोलता है, पूछता है, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता, तो वो उससे उसका स्पैड यानी फावड़ा छीन करके खुद कार्य करने लगता है। अब बहुत सारे समय बीत जाता है, शाम हो जाती है, राजा काम करना बंद कर देता है। बेड्स यानी कि डिगिंग द बेड्स यानी कि क्यारियों को खोदना बंद कर देता है। अब किंग रेडी था कि वो वहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी हरमीत बोलता है कि कोई हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग सॉ अ bearded man running towards them. His hands were passed against his stomach from which blood was oozing. As he reached the king, he fainted and fell to the ground. He had a large wound in the stomach. The king washed the wound and compressed it with his
handkerchief. At last the bleeding stopped. The man felt better and asked for water to drink. The king gave him fresh water. The sun had set by then. The king and hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The tired king also fell asleep. When he awoke, the bearded man asked to forgive him. अब राजा उस बेयर्डेड यानी कि जिसकी दाढ़ी मूछ होती है उस व्यक्ति को देखता है जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और अपने स्टमक को उसने प्रेस किया होता है अपने हाथ से, जहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। जैसे ही वो राजा के पास पहुँचता है वो ग्राउंड में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव होता है। राजा उस घाव को साफ करता है और फिर उसे अपने हैंकरचीफ से, रुमाल से उसे दबाता है जब तक कि खून बंद नहीं हो जाता। अब जब वो व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा फील करने लगता है तो पानी मांगता है। राजा उसे फ्रेश वाटर देता है। शाम हो जाती है। राजा और हरमीत उस व्यक्ति को हट के अंदर यानी झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। राजा बहुत ज़्यादा थक चुका होता था इसलिए वो भी लेट जाता है और सो जाता है। जब वो जगता है तो वो जो बियर्डेड मैन था वो माफ़ी मांग रहा होता है। किससे? राजा से। The man was in fact the king's enemy. He had followed the king to take revenge on him. He had vowed to kill him. The king had once put his brother to death. The man hid himself in a bush on the way to the jungle. He came out of the hiding place when the king did not return for long. He got wounded by king's bodyguard. He would have died if the king had not dressed his wound. He felt grateful to the king who had saved his life. He promised to serve the king as a faithful servant. The king was happy that he had made peace with his enemy. He forgave the man and promised to give back his property. अब वो जो व्यक्ति था वो राजा का दुश्मन था। वो राजा का पीछा कर रहा था जब राजा उस हरमीत के पास जाने के लिए गया था ताकि राजा उसे रास्ते में मिलता और वो राजा को मार देता। क्यों? क्योंकि एक बार राजा ने उसके ब्रदर को मृत्यु की सज़ा सुनाई थी। उसने अपने आप को झाड़ियों में छुपा रखा था जब वो जंगल जा रहा था, लेकिन उसे राजा नहीं मिल पाता। राजा के बॉडीगार्ड्स मिल जाते हैं और उस बॉडीगार्ड उसे मार देते हैं और वो चोट उसे इसके पेट में लग जाती है। अगर राजा उसकी देखभाल नहीं करता, उसकी चोट की ड्रेसिंग नहीं करता तो वो व्यक्ति मर जाता। तो व्यक्ति जो था वो राजा का बहुत ग्रेटफुल था, बहुत उसने धन्यवाद किया और प्रॉमिस किया कि वो उसका बहुत ही फेथफुल सर्वेंट बनेगा। अब राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसके एनिमी के साथ उसका पीस हो गया, अब उसके साथ झगड़ा ख़त्म हो गया। वो उस व्यक्ति को फॉरगिव यानी माफ़ कर देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे देगा। द किंग देन वेंट अप टू द हर्मिट. ही अगेन आस्क्ड फॉर क्वेश्चन. For the answer to his three questions, the hermit explained that by digging the beds for him, the king had escaped attack. So the most important time was when he was digging the beds. The hermit himself was the most important person, so to do him good was the king's most important business. अब राजा हरमीत के पास फिर जाता है और अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछता है। तो हरमीत बोलता है कि जब वो क्यारियों को खोद रहा था तो वो उसके ऊपर अटैक होने से बच गया। अगर वो वापस जाता तो वो व्यक्ति उसे मार देता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो समय, द हरमीत हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो वो जो नाव था यानी कि जो अब था वो समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हरमीत कहता है कि इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन था उस वक्त, उसके लिए वो हरमीत, द हरमीत हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसके लिए उस वक्त वो सब कुछ भी उसे राजा को नहीं दिख रहा था, उसे कौन दिख रहा था, सिर्फ हरमीत दिख रहा था ताकि वो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे दे। सो टू डू हिम गुड वाज द किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो उसने उस व्यक्ति के लिए अच्छा किया वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य था। द हरमीत फर्दर टोल्ड द किंग दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम वॉज द पर्सन विद हिम एट पर्टिकुलर मोमेंट। उस मोमेंट में, उस समय में जो व्यक्ति उसके साथ था वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वॉज हेल्प दैट पर्सन। और उस व्यक्ति की जो उसने हेल्प की वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज नाउ।
दैट इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। जो आज है हमारा, जो प्रेजेंट मोमेंट है जो इस वक्त, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो इम्पॉर्टेंट टाइम हमारा क्या हुआ? नाउ। इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो हुआ जो हमारे साथ है, और इम्पॉर्टेंट कार्य जो हम उस व्यक्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो वही इम्पॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर्स, 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट आर 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग? Simple. The 3 questions asked by the kings are: what is the right time to start a venture, who are the right person to advise him, and what is the most important thing to do. What did king do when he did not get any satisfying answer? When the king did not get any satisfying answer, he decided to meet a wise hermit to find out the answer for his question. तो अब आपके लिए कुछ एक्टिविटी है। आप राइट अ नोटिस अबाउट द कॉम्पिटिशन पुट फॉरवर्ड बाय द किंग। जो राजा ने कंपटीशन दिया था, अभी चैप्टर मैंने आपको बताया था कि राजा ने क्या कहा था कि जो भी उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उसे रिवॉर्ड देगा। तो उसको आपको नोटिस लिखना है। और एक एक्टिविटी और है जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, उसके बारे में लिखना है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय।